Hello students, today now we are going to study numericals based on Stokes law and on terminal velocity. So before we will study, first of all we will study numericals on Stokes law, and you know what Stokes law is. If a spherical object is falling through a viscous liquid, then the total viscous drag, viscous force opposing its motion is given by F is equal to 6 pi r eta into V. That's the formula. So on that basis we will study the numerical questions. So first question is a textual question. This is a question from exercise given on page number 55 of our textbook. Calculate the viscous force on a raindrop of diameter 1 mm falling with the uniform velocity of 2 meters per second through air. And what is the viscous medium? Air. The coefficient of viscosity of air is given 1.8 into 10 to the power minus 5 Pascal second or Newton second per meter square. Let us see. So what is Stokes law? Let us first write down the given data. A raindrop of diameter of the raindrop is given to be 1 mm. So radius will be 0.5 mm. And we can write radius to be is equal to 0.5 into 10 raised to the power minus 3 meter. We can write it as 5 into 10 raised to the power minus 4 meter. This is the radius of the raindrop. It is falling with a uniform velocity of V is given to be 2 meters per second in SI units through air. Coefficient of viscosity of the air is given to be 1.8 into 10 raised to the power minus 5 SI units. Newton second upon meter square. These are the given things. And what is by Stokes law? We can solve it by Stokes law. Viscous force is given by viscous force on the falling raindrop is given by falling raindrop through air is, ये ऊपर लिखना जरूरी नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया. So that force is F is equal to 6 pi RV eta, 6 pi RV eta, ऐसा याद रखना, 6 pi RV eta ऐसा. तो F is equal to 6 into pi का वैल्यू 3.14 into radius is 5 into 10 raised to power minus 4 meter. एंड फिर उसके बाद क्या है? रेडियस इज गिवन 6 pi RV, वेलोसिटी इज 2 into eta is 1.8 into 10 raised to power minus 5. So it becomes 6 5s are 30, 32s are 60, 60 into 1.8. let us पावर्स को साइड में कर देते, नंबर्स को एक अलग रख देते. 6 5s are 30 हो जाता है, 32s are 60 हो जाता है, 60 into 1.8 और जो भी आएगा उसको 3.14 से मल्टीप्लाई इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 5 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 6 5s are 30 एंड फिर 2s are 1.5 और and I will directly write down the answer. The answer is 3.393 into 10 raised to power minus 7 Newton. This is the answer. Our calculations can be done by you at home. I will not waste our time in doing the calculations. इसके बाद आप क्या करते हो? You write answer in words. Answer in words. वो लिख लेना. The viscous force acting is this much. Okay, note it down. You can take a screenshot. पूरा क्वेश्चन आ गया इसमें और सॉल्यूशन भी आ गया. You can take a screenshot. Then let us go to the next question. वैसा ही क्वेश्चन है, हालांकि इसमें कुछ दम नहीं है. Solution. A steel ball of radius r is given how much? 0.3 mm. So we can directly write 3 into 10 raised to power minus 4 meter. चलेगा? समझ गए आप? 3 into 10 to power minus 4 कैसे हो गया? Very good. After it,
falling with a velocity of, the velocity is given to be again 2 meters per second. Through glycerine having coefficient of viscosity eta is 0.833 Newton second upon meter square. Determine the viscous force acting on a ball. F is equal to question mark. अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम स्टोक्स लॉ यूज करना है? एग्जाम में थोड़ी लिख के आएगा कि दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ. तो याद रखना कि जब भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउन और राइजिंग अप थ्रू अ विस्कस लिक्विड और विस्कस गैस, तो उस समय हम ये फॉर्मूला लगाते हैं. यहां पर क्या हो रहा है? दिस बॉल इज फॉलिंग डाउन, ये स्टील बॉल नीचे गिर रहा है. तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ये आपके वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जैसा दिख रहा है प्लांट के. तो जब भी कोई स्टील ऑब्जेक्ट, स्टील बॉल वगैरह नीचे गिर रहा हो, या रेन ड्रॉप, बाजू में विस्कस, ये बाजू का जो मीडियम दिस इज ग्लिसरीन. इससे पुराने क्वेश्चन में बाजू में मीडियम, विस्कस मीडियम वाज एयर एंड रेन ड्रॉप गिर रहा था. तो जब भी किसी विस्कस मीडियम में अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो समझ जाना स्टोक्स लॉ यूज करना है. एंड व्हाट डज स्टोक्स लॉ से? द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, विस्कस फोर्स यानी अपवर्ड फोर्स जो उसको रुकाने की कोशिश कर रहा है. अपथ्रस्ट के अलावा ये विस्कस फोर्स अलग होता है, अपथ्रस्ट अलग है. So viscous force will be given by 6 pi RV eta. क्या हम eta है? RV eta ऐसे याद रखना. This is 6 pi. F is equal to 6 into 3.14 into R की वैल्यू क्या होंगी? तो रेडियस इज 3 into 10 raised to power minus 4 into V, वेलोसिटी 2 दी है, वेलोसिटी 2 into eta 0.833. F is equal to, सॉल्व करने पर क्या आंसर आता है? कैलकुलेशन आप करोगे बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन डूइंग द कैलकुलेशंस. 9.421 into 10 to power minus 9.421 into 10 raised to power minus 3 Newton. This is the answer. आंसर इन वर्ड्स आप लिख लेना. दिस इज इट. मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्टली आंसर बुक से देखकर लिख दिया है बिकॉज वी वांट टू सेव टाइम, है ना. तो राइट इट डाउन. इसको अपने फिजिक्स रजिस्टर में नोट कर लो. और इस जैसे जब न्यूमेरिकल्स हो मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो यू विल सॉल्व देम एट होम एंड सबमिट इट वाया व्हाट्सएप टू मी. नाउ सी स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन याद दिला देता हूँ इन शॉर्ट. ठीक है. कंसीडर दैट दिस इज अ बीकर. ये एक बीकर है एंड दिस बीकर इज फिल्ड विद विस्कस लिक्विड. मैं ये विस्कस लिक्विड को कलर दे देता हूँ ग्रीन. ठीक है. दिस इज द विस्कस लिक्विड शोन बाय ग्रीन कलर. ये जरूरी नहीं लिक्विड, इट कैन बी गैस ऑल्सो, फ्लूइड, बट बेसिकली लिक्विड कंसीडर करिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है ना. दिस लिक्विड हैज डेंसिटी. इस लिक्विड की डेंसिटी हम सिग्मा से बता रहे हैं. ठीक है. डू नॉट गेट कंफ्यूज. सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जो स्फेरिकल बॉल गिरेगा नीचे उसका डेंसिटी जो है वो हम रो से बता देंगे. दिस इज द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन. जरूरी नहीं कि हर बार फॉलिंग डाउन होगा, राइजिंग अप भी हो सकता है, बट वो सब डिपेंड करेगा विस्कस फोर्स और सब कितना है करके. ठीक है. इस पे ऊपर भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ऊपर में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और नीचे में एक फोर्स एक्ट हो रहा है. नीचे का फोर्स ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा नीचे गिर रहा है. तो नीचे का फोर्स कितना है वो देखेंगे और ऊपर के दोनों फोर्सेस कितने हैं वो देखेंगे. तो अपवर्ड फोर्सेस कितने हैं, इसका डेंसिटी कितना है, रो. अब ध्यान से समझो. अपवर्ड फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं उस पर? तो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे. कौन कौन सा? F विस्कस. ये विस्कस फोर्स कैसे दिया जाएगा? बाय स्टोक्स लॉ. और दूसरा फोर्स क्या हो रहा? F अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट का दूसरा नाम क्या है?
और बॉयंसी, BUOYANCY, बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स ऊपर धक्का दे रहा है और विस्कस फोर्स। अब ध्यान से समझना, अपवर्ड फोर्स जो है, अपवर्ड फोर्स, टोटल फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं इस पर, F विस्कस एंड अपथ्रस्ट फोर्स। तो देखो कितना होता है इनका वैल्यू, ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको एक काम कर लेते, टोटल फॉर्म में लिख लेते। चलो ठीक है, जाने दो। सी विस्कस फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो 6 पाई RV ईटा। अब ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं, विस्कस फोर्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ, 6 pi RV ईटा। व्हाट इज R? R is the radius of this sphere, V is the terminal velocity, maximum velocity, constant velocity, maximum constant velocity with which it is falling down, plus अपथ्रस्ट कितना होगा। तो अपथ्रस्ट के लिए मैंने आपको समझाया था कि यहाँ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगेगा। आर्किमिडीज ने क्या कहा, आर्किमिडीज ने कहा कि अगर समझो ये कंटेनर यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैंने ये पत्थर डाल दिया यहाँ पे, दिस इज अ स्टोन, और एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे हल्का हो या भारी हो, ये ऑब्जेक्ट मैंने इस पे डाल दिया, तो फिर से वो याद करो कौवे की कहानी। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल फिरता था, जंगल में एक घड़ा था, उसमें थोड़ा पानी था, कंकर पत्थर जमा किया, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म, अपनी कहानी। तो यहाँ पर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट पानी में गिरेगा तो वाटर लेवल विल राइज, वाटर लेवल बढ़ेगा, और वाटर लेवल के बढ़ने के कारण, समझो इसमें वाटर है, समझो वाटर है, वाटर लेवल बढ़ गया और वाटर यहाँ गिर जाएगा, तो वाटर यहाँ जमा होगा कंटेनर में, बाजू वाले कंटेनर में। तो अब इस पर अपथ्रस्ट कितना एक्ट हुआ, बॉयंसी फोर्स कितना एक्ट हुआ, तो बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड by the object। ये जो पत्थर या नाव, खिलौना, किला, आयरन नेल, व्हाटएवर बी द ऑब्जेक्ट जो गिरा, उसने जितना वेट डिस्प्लेस किया, यहाँ जो पानी है उसका जितना वेट होगा, जितना वो डिस्प्लेस किया, उतना बॉयंसी फोर्स, उतना अपथ्रस्ट उस पर एक्ट होगा। और वेट इज इक्वल टू m इंटू जी लिखते हैं अपन, मास की जगह क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना लिखेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3। अब इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, तो हम वॉल्यूम लिखेंगे 4/3, ये जितना ये इसका वॉल्यूम, उतने वॉल्यूम इधर गिराएगा वो, तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, डेंसिटी हम कैसे बता रहे हैं, सिग्मा। व्हाट इज, ये क्या वेट ऑफ द लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी कैसे बताएंगे, सिग्मा से, तो दिस विल बिकम सिग्मा, सिग्मा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये हो जाएगा। बॉयंस फोर्स की वैल्यू याद रखो कितनी है, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, याद रहेगा। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड की डेंसिटी है, ठीक है। और डाउनवर्ड, ये अपवर्ड फोर्सेस, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्फीयर, वेट ऑफ स्फीयर है, और वेट ऑफ स्फीयर कितना होगा, मास ऑफ द स्फीयर, देखो लिख रहा मैं, मास ऑफ द स्फीयर इंटू जी, मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, तो ये डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। आप बोलेंगे सर वॉल्यूम तो उधर भी 4/3 पाई आर क्यूब, एक्चुअली ये जब स्फीयर इधर आएगा तो उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो, तो ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स और ये अपवर्ड फोर्सेस। अब कौन सा फोर्स, अगर ये नीचे 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 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर है,
तो नेट फोर्स कितना बचेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना बचेगा, दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो देखो मैं ऐसा लिख सकता, एफ नेट, नेट विस्कस फोर्स, या सॉरी नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स, जरूरी कभी उल्टा भी हो सकता, अपवर्ड फोर्स भी हो सकता, सीधे सीधे लिख देता मैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू, यहां पर कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो ये वाला फोर्स जो है एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ज्यादा है, तो आई कैन राइट एफ जी माइनस एफ बी प्लस एफ यू, एफ यू यानी अपथ्रस्ट, तो एफ जी माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, एफ नेट, तो एफ नेट के कारण क्या हो जाएगा, एफ नेट के कारण ये एफ जी कितना आएगा, इसकी वैल्यू रहेगी, एंड एफ जी ज्यादा है, एफ जी इज हियर इफ द स्फीयर इज फॉलिंग डाउन, if the sphere is falling down, it means if falling down with acceleration, अगर ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि एफ जी इज ग्रेटर देन एफ बी प्लस एफ यू, एफ जी ग्रेटर है और उसी एफ के कारण इसमें एक्सेलरेशन आ रहा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, कंफ्यूज मत होना, एफ नेट है, एफ जी ग्रेटर है और ये दोनों स्मॉलर है, तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स एफ नेट इज एक्टिंग, has some value, has some value, and F net is causing acceleration, F net is causing downward acceleration, कंफ्यूज मत होना, देखो डाउनवर्ड फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड फोर्सेस कितने, दो, विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट, और अगर ये नीचे गिर रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, इसका मतलब जरूर एक्सेलरेशन आ रहा है, अगर नीचे गिरते समय वेलोसिटी बढ़ रही, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कब आता, जब फोर्स एक्ट होता है, तो इसमें नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, its velocity is increasing, उसकी velocity increase हो रही, its यानी spheres, velocity of the sphere is increasing, but a stage will come when Fg will be equal to Fu plus Fv, या F viscous प्लस एफ अपथ्रस्ट हो जाएगा, देन एफ नेट विल बी जीरो एंड वी विल बी कांस्टेंट। अब एफ नेट जीरो हो जाएगा, तो एफ नेट जीरो हो जाएगा मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया, उस पर नेट फोर्स के जीरो होने के कारण क्या हो गया, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं, this constant maximum velocity is called terminal velocity, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के समय ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। मैं थोड़ा कैमरा उधर सरकाता हूं, ये नोट कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके आगे का मैं यहां लिख देता हूं। अब ध्यान से समझो क्या होगा, when Fg becomes equal to F viscous plus F upthrust, ऐसा समय क्या हो जाएगा, Fg की जगह क्या लिखेंगे हम, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी इंटू जी, इंटू ये डेंसिटी लिखेंगे, और Fv की जगह क्या लिखेंगे, 6 पाई आर वी ईटा, और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, अपथ्रस्ट 4/3, अपथ्रस्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब उसको इधर बुला लेंगे,
हमको क्या चाहिए, काय के लिए चाहिए, हमको ईटा के लिए अगर चाहिए फॉर्मूला, या वेलोसिटी के लिए चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, तो वी कैन राइट सिग्मा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा। कॉमन क्या निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ब्रैकेट्स में रहेगा रो माइनस सिग्मा अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 6 पाई आर ईटा इज इक्वल टू वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वी टर्मिनल। टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने से पहले मैं सोचता हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक बार डेरिवेशन याद दिला दिया जाए। तो मैंने आपको डेरिवेशन याद दिला दिया, फॉर्मूला याद दिला दिया। अब ऑन दैट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। हालांकि ये डेरिवेशन मैंने आपको कब करवाया था, जब हमारा थियरी पार्ट चल रहा था। तो थियरी के समय भी मैं डेरिवेशन करवाता हूँ और न्यूमेरिकल्स कराने से, सॉल्व करवाने से पहले भी डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ताकि डेरिवेशन की भी रिवीजन हो जाए और न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। बहुत से टीचर्स लोग एक थियरी पार्ट पढ़ाते हैं, उसके बेसिस के न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। मैं क्या करता हूँ, थियरी पढ़ाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल जब पढ़ाता हूँ तो फिर से उस थियरी के टॉपिक को रिपीट करवा देता हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। भले ही मुझे नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा बनाना पड़े, बट आपको समझना और आपके अच्छे मार्क्स लेना, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ गया। वी विल स्टॉप एंड वी विल राइट डाउन द क्वेश्चन। Okay, see the students, this is the first numerical question based on terminal velocity. Find the terminal velocity of a steel ball bearing. Ball bearing है ना छर्रा, जो बाइसिकल के व्हील में, गाड़ी में होता है ना, छर्रा बोलते हैं जिसको, स्टील का बना हुआ गोल स्फीयर। Find the terminal velocity of a steel ball bearing of radius 0.25 centimeter when it falls through a tube filled with glycerine. Density of steel is given to be 8 gram per centimeter cube and density of glycerine is 1.33 gram per centimeter cube, and coefficient of viscosity of glycerine is given to be 8.33 dyne second upon centimeter square, यानी poise. Poise is the CGS unit of coefficient of viscosity. तो it can be noted, इस क्वेश्चन को देखकर ये समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज गिवन इन CGS यूनिट, तो हमारा आंसर भी CGS यूनिट में लाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन तो जाने दो, वैसे भी गिवन तो दिख ही रहा है सामने। तो क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, वी टर्मिनल velocity terminal. What is terminal velocity? It is the constant maximum velocity with which an object falls through a viscous medium. तो विस्कस लिक्विड है, ग्लिसरीन गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, उसमें छर्रा डालिए तो छर्रा धीरे धीरे घसरते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से आ रहा है, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ भी नहीं कम भी नहीं, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी देखो कितनी हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का, 4/3 पाई आर क्यूब जी, और यहाँ लिखते हैं हम रो स्टील माइनस सिग्मा ग्लिसरीन। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, अगर बॉल बेयरिंग की डेंसिटी ज्यादा है, छर्रे की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे आएगा। ग्लिसरीन की डेंसिटी कम है, छर्रे की, बॉल बेयरिंग की डेंसिटी ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, वो छर्रा नीचे आएगा। लेकिन अगर विस्कस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, विस्कस मीडियम की विस्कोसिटी या डेंसिटी ज्यादा है, और वो ऑब्जेक्ट जो है अगर छर्रा है या जो भी है उसकी डेंसिटी कम है, तो उल्टा वो ऊपर जाएगा। ये डेंसिटी का कमाल है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर। तो यहाँ देखो स्टील की डेंसिटी माइनस ग्लिसरीन की डेंसिटी, यहाँ हमेशा ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू लिखना है अपन को, डिवाइडेड बाय क्या है, तो 6 पाई आर ईटा, ये हो गया। अब क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। सो इट विल बिकम 4/3 पाई को क्या करते हैं अपन 3.14 इंटू आर क्यूब, रेडियस कितना दिया है 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 स्क्वायर सॉरी क्यूब, जी कितना लेंगे 980,
देखो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स टाइम पे चकमा खा जाते हैं, हालांकि सबको मालूम होता है लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ हम सब सीजीएस यूनिट पर रख रहे हैं तो जी विल बी 980 होगा ये, ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली वैल्यू रख देती है, इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट इज 980, 9.8 मत रखना, सीजीएस वैल्यू है ये। अब डेंसिटी ऑफ स्टील इज गिवन टू बी 8 माइनस ग्लिसरीन इज 1.33 डिवाइडेड बाय 6, अरे वाह पाई पाई तो ऐसे ही कैंसिल होगा, इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 0.25 इंटू ईटा 8.33, सो दिस इज, ये बहुत अच्छा होगा कि पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 0.25 कैंसिल होगा और ये क्यूब की जगह रेडियस स्क्वायर बाकी रह जाएगा रेडियस का। एंड वी टर्मिनल सॉल्व करने के बाद आता है 10.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है बुक में से देखकर, सॉल्व किया और जो गिवन आंसर है मैंने डायरेक्ट गिवन आंसर लिख दिया, ठीक है। यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम इन डूइंग द कैलकुलेशन। इसको आप लॉग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड द लॉग एंड एंटी लॉग, और उससे इसका आंसर आ जाएगा। देयर इज नथिंग डेंजरस इन इट, ओके, नोट कर लो। All right students, see the next question. This is a textual question, ठीक है, स्टार बना दिया मैंने वहाँ पर। With what velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity which is also called relative density 0.9. Density of air is given to be 1.29 kilogram per meter cube. चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो see the solution. ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी चीजें ज्यादा दी हुई है। सबसे पहले विथ व्हाट वेलोसिटी विल एन एयर बबल, उसका रेडियस डायमीटर इज गिवन, डायमीटर ऑफ द बबल इज 0.4 mm, सो इट्स रेडियस विल बी 0.2 mm एंड 0.2 mm कैन बी रिटन एज 0.2 into 10 raised to power minus 3 मीटर, और उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, it can be written as 2 into 10 raised to power minus 4 meter, 2 into 10 raised to power minus 4 meter, ऐसा यूनिट्स में ला लिया हमने। अब ध्यान से समझना, with what velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise, एयर बबल ऊपर जा रहा है in a liquid। अब आपको मालूम है किसकी डेंसिटी ज्यादा रहती, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा रहेगी या एयर बबल की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो लिक्विड विल गो डाउन एंड एयर बबल विल गो अप। डायग्राम बनाना जरूरी है, हम लिख देंगे उसको। विद विस्कोसिटी, वो जो लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1 दिया वो क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। हम कैसे पहचाने, हमने उसके यूनिट से उसको पहचाना कि वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्या है 0.1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, रिमेंबर द फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी किसको कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, रिलेटिव एंड कंपैरेटिव, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी फिजिक्स में। ये कॉन्सेप्ट अभी अपने सी, रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं इन फिजिक्स, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा के लिए याद रख लेना, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यूज है जो बार बार कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आते ही रहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी की कितनी दी है, विद रिलेटिव डेंसिटी 0.9, तो दिस विल बी 0.9 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ कौन सा सब्सटेंस है वो, तो डेंसिटी कौन सा सब्सटेंस है, लिक्विड है, तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब वो कौन सा लिक्विड है, तो ठीक है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी रहती, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहती, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अब देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी हो जाएंगी,
उधर साइड में लिखेंगे हम। पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं इधर का मिटाता हूँ। नोट कर लिए वो, आपको तो दिख रहा ही नहीं होगा। नाउ यू कैन नोट डाउन। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब उसके आगे का इधर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। मैंने फॉर्मूला नहीं मिटाया क्योंकि फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 इंटू 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कैसे बताते हैं अपन, सिग्मा से बताते हैं। अब ये कितना होगा, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कौन सा लिक्विड है मालूम नहीं, लेकिन उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, क्योंकि वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और ये 900 है, मतलब वाटर की डेंसिटी से कम डेंसिटी वाला लिक्विड है। और उसमें एयर बबल है, और एयर बबल की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कितनी है, और भी कम है ना। तो ये ऊपर जाना चाहता है। चलो ये हो गया गिवन डेटा। और डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन टू बी, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर क्या लिखेंगे हम, ये एयर बबल है ना। जब भी स्फीयर कोई चीज रहती है उसके लिए हम रो यूज करते हैं, तो उसके लिए कितना है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, एयर बबल की डेंसिटी कम है, तो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, तो एयर बबल ऊपर जाएगा। जैसे जैसे एयर बबल ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएंगी, मैक्सिमम फास्टेस्ट वेलोसिटी हो जाएंगी, और उसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 4/3। अच्छा, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, मेरा ध्यान नहीं जब से, कि हम तो इसको पाए तो यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। ये 4/3 को हम 2/3 भी कर सकते हैं, तो इट बिकम्स 2/3। ये r कैंसिल करके इसको r स्क्वायर कर देंगे, 2/3 r² g अपॉन 6 ईटा। और यहां अब क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम सिग्मा लिक्विड माइनस रो एयर बबल स्फीयर, रो स्फीयर। और यहां स्फीयर कौन है, यहां स्फीयर कौन है, एयर बबल। फॉर्मूला समझे, उल्टा क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि ग्रेटर डेंसिटी माइनस लेसर डेंसिटी करना है हमेशा। सो इट इज इक्वल टू, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, v टर्मिनल, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ गए क्या लिख दिया, अरे यार दिख रहा ही नहीं फॉर्मूला आपको। सी द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू 2/3, 2/3 क्यों होगा, 4/3 था ना, यहाँ 4/3 पाई r क्यूब था, तो इसको भी हमने 3 कर देना है, दिस विल बिकम 3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और ये 3 नीचे आ जाएगा तो इट विल बिकम 9 ईटा। तो चलो इसी में वैल्यूज डाल देते हैं। ये 3 कैंसिल नहीं होगा, ये न्यूमरेटर का है और ये इसके डिनोमिनेटर का है, बल्कि ये दोनों मल्टीप्लाई पे 2/9 ईटा हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, v टर्मिनल इज इक्वल टू 2/3, चाहे तो आप 2/9 भी लिख सकते हैं, 2/3 इंटू r²। रेडियस कितनी दी है बबल की, 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर इंटू जी। अब यहाँ SI यूनिट्स में काम चल रहा है, देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब SI यूनिट्स में है, तो जी का वैल्यू किस में लिखेंगे, SI यूनिट्स में, 9.8 ये जी हो गया। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, माइनस स्फीयर की डेंसिटी कितनी है, स्फीयर क्या एयर बबल है, इट इज 1.29 डिवाइडेड बाय 3 ईटा, तो दिस इज 3 एंड ईटा का वैल्यू इज गिवन। वो लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है, सॉरी वो लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1 है। अब दिस इज वेरी इजी, ये 3 3 से 9 हो जाता है, वो 0.1 यानी डिवाइडेड बाय 0.9 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे
इसको ऊपर ले गए हमने, ठीक है, ये अलग है, उसी का पार्ट है। अब इसके आगे यहाँ लिखता हूँ मैं, V terminal is equal to, calculations will be done by you. So the answer is 7.829 into 10 raised to power minus 4 meter per second. टेक्स्ट बुक में आंसर दिया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। और इसको अगर इधर कर दिए तो वी कैन राइट, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 0.7829 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। और 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.829 मिलीमीटर पर सेकेंड, वी टर्मिनल। इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? अपवर्ड। बबल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, ये। अच्छा, समझ में आ गया। और यहां पर एक चीज ये लिखना है, यहां पर नोट कर लेना, ऐसा लिख देना, सिंस डेंसिटी ऑफ एयर बबल इन स्फीयर is less than density of liquid, ये रीजन दे दिया अपन ने यहाँ, ठीक है। दिस इज डॉट 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 डॉट, नोट कर लो जल्दी से। ये टेक्सचुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, लुक एट इट, हैव अ पूरा बोर्ड तो हमको एक साथ नहीं दिखेगा, नोट कर लो। कैलकुलेशंस कैन बी डन बाय यू एट होम। आई होप आपको समझ गया। अब मैं आपको असाइनमेंट के लिए एक दो क्वेश्चंस दे देता हूँ एंड यू विल डू देम एट होम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जल्दी से देख लो आपका असाइनमेंट। A spherical drop, oil drop falls at a steady rate of 2 centimeters per second in still air. Still air यानी आंधी तूफानी हवा एक जगह रुकी हुई है, रुकी है ना, लगभग रुकी है। Find the diameter of the drop. Take g is equal to 980 centimeter per second square. Eta is given 1.8 into 10 power minus 4 poise. Density of oil is 0.8 gram per centimeter cube. Density of air is 1 gram per centimeter cube. Radius of the drop लाएंगे आप और फिर उसके बाद उसको diameter में convert कर देंगे। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन स्टिल स्टेडी एयर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 पॉइज। टेक जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आएगा 0.00574 सेंटीमीटर। इसका आंसर अगर आप नवनीत डाइजेस्ट में देखोगे तो 0.574 दिया है, वो मीटर का दिया है। ये आंसर सॉल्व करने पर ऐसा आंसर आना चाहिए। नवनीत डाइजेस्ट में इसका आंसर 0.574 मीटर, सेंटीमीटर लिख दिया उन्होंने, शायद वो मीटर होना चाहिए वहाँ। तो सी द नेक्स्ट इज अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 mm फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस लिक्विड acquires a terminal velocity of 4 centimeter per second. If the density of the metal is 8000 kilogram per meter cube and that of the liquid is 1200 kilogram per meter cube, calculate the coefficient of viscosity of the liquid, and the answer is eta, coefficient of viscosity of the liquid is equal to 0.37 Newton second per meter square, और पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं। eta is equal to 0.37 पास्कल सेकंड। हैव अ नाइस टाइम, enjoy solving, कैलकुलेशन लॉग बुक यूज़ करके करना है। थैंक यू वेरी मच।